Hello students, in the earlier classes, as you know, we were discussing about the agriculture sector of the India under the British rule. And in the earlier class we have studied that there was low productivity in the agriculture sector. In today's class we will discuss about the reasons of that low productivity. Why there was low productivity under the British rule, we will discuss about those reasons. There are some reasons which I mentioned. As you can see, the topic is the causes of India's agriculture stagnation and low productivity. Why was India's agriculture sector stagnant? It was not moving, it was not growing. That's why it is known as stagnant. So why agriculture sector was stagnant? Why it had low productivity? We will discuss here today. Basically, it was because of three reasons. First was zamindari system. The second was lack of irrigation facility and low level of technology, and the third was lack of resources. Let's discuss these three reasons. First was the zamindari system. The zamindari system was introduced in the Bengal presidency. Firstly, it was introduced in the Bengal presidency, and then later on it was introduced in all over India. Under the zamindari system, a zamindar was appointed as a head of the area or village to collect the revenue, to collect the crop, to collect the share of crop which is grown in that area or that village. So that zamindar is appointed for the revenue collection system. So that zamindar is only responsible for, zamindar was only interested in the share of profit. He did nothing to improve the agriculture, to improve the condition of the agriculture. He was just interested in the profit of the crop. He was just interested in the profit of the village in the form of crop. He was just interested in his share. उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिल जाए, उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल जाए. He was interested in that only. He did nothing to improve the condition of the actual farmers, actual cultivators who are doing their hard work to grow this crop. जो असल में मेहनत कर रहे थे वो थे कल्टिवेटर्स, वो थे फार्मर्स. उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ज़मींदार ने कभी कुछ नहीं किया. ज़मींदार ने कभी ध्यान नहीं दिया. उसका फोकस बस किस पे था? अपने प्रॉफिट पे था. तो ये रीज़न था कि हमारी प्रोडक्टिविटी कभी बढ़ नहीं पाई, क्योंकि एक्चुअल कल्टीवेटर फार्मर्स को कुछ मिल ही नहीं रहा था. सेकेंड वॉज मेन इंटरेस्ट वॉज टू कलेक्ट रेंट. ठीक है, उसका इंटरेस्ट किस पे था? उसका इंटरेस्ट इस पे नहीं था कि इस लैंड की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए या उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए. कैसे इस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, कैसे ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाए, ये उसका इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, बस अपना शेयर मिल जाए, उसका ये इंटरेस्ट था. अगर 100 kgs उग रहे हैं और क्रॉप ग्रो की जा रही है तो उसमें उसका शेयर मान लीजिए 80 kg 80% है, तो 100 में से 80 उसको बस घर लेके जाने, उसको ये पता है. 90 ग्रो कर रहे हैं तो 90 में से 80 घर लेके जाने हैं. 85 अगर ग्रो हो रहा है तो 85 में से 80 से घर लेके जाना है. बस उसे तो इस बात पे फोकस था कि मेरे को मेरा 80 मिलना चाहिए. तो मेन फोकस वॉज टू ऑन द कलेक्शन ऑफ रेंट. उसको ये नहीं था कि इस 100 को 110 कैसे बनाया जाए, या फार्मर के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा. उसका इंटरेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं था. थर्ड क्या था कि और ये जमींदार ये सब क्यों कर रहा था? बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स. जो ब्रिटिशर्स रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे थे उसकी वजह से जमींदार ये सब कर रहा था. सर क्या था वो? देखिए, ब्रिटिशर्स ने एक रेवेन्यू कलेक्शन की एक डेट फिक्स कर रखी थी कि इस डेट तक आपको सब कुछ डिपॉजिट करना है. इस डेट के बाद आपसे हम क्या कहते हैं नाराज हो जाएंगे. ठीक है, एक अमाउंट फिक्स कर रहा था कि इतना अमाउंट आपको हमको डिपॉजिट करना ही करना है. ठीक है, चाहे आपके यहाँ पे अच्छी क्रॉप हुई हो या नहीं हुई हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं था. ठीक है, और अगर ये सब नहीं करेंगे तो वो जमींदार अपने राइट्स भी लूज कर सकता है. ठीक है, अगर ये सब नहीं किया तो जमींदार अपने राइट्स भी लूज कर सकता है. तो ये सब होने की वजह से जमींदार कल्टीवेटर्स के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गई थी. ठीक है, क्योंकि जमींदार डर रहा है कि उसके राइट्स ना चले जाए. और वो डर क्यों रहा है? क्योंकि जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, ठीक है, वो बहुत ही इनकंसिडरेट है. ठीक है, फार्मर्स कल्टीवेटर्स की एक्चुअल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी नहीं था. तो ये रीज़न था कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही थी. ठीक है, क्योंकि किसी का ध्यान एक्चुअल प्रोडक्शन पे तो था ही नहीं, बस सबको
अपनी अपनी जेबें भरनी थी, ठीक है, उस पे रहता है। एक्चुअल कल्टीवेटर, एक्चुअल फार्मर इंप्रूव कर सके, ऐसा किसका भी फोकस नहीं था। तो पहला रीजन था हमारा जमींदारी सिस्टम। सेकेंड रीजन था हमारा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे यहाँ पे क्योंकि फार्मिंग इज मेनली डिपेंडेंट ऑन वाटर, ठीक है, वाटर पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट है, तो वो वाटर फैसिलिटी फार्मर्स तक पहुँचे, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव हो, ऐसा बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, ठीक है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ेगी? इरिगेशन फैसिलिटी के साथ साथ एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता है, जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है सॉइल में तो उसे फर्टिलाइजर्स के थ्रू दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, ऐसे रिसोर्सेज फार्मर्स को देना, ऐसी नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करना, इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, ध्यान ही नहीं था किसी का भी, ठीक है। ब्रिटिशर्स को तो सिर्फ क्या मतलब था, हमारा शेयर आ गया। तो टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया गया, रिसोर्सेज पे फोकस नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी पे फोकस नहीं किया गया, तो कहाँ से प्रोडक्शन हमारा इम्प्रूव होगा? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये भी एक रीज़न था कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तीसरा था लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हम बिल्कुल भी, हमारे पास में फार्मर्स के पास में कोई फ्लड कंट्रोल का सिस्टम नहीं था कि कोई फ्लड अगर आने वाली है या अगर आ जाती है तो उसमें कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें बचाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। एग्रीकल्चर के अंदर और इन्वेस्ट वो करें, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रमोशन, कोई भी इंसेंटिव, कोई भी एनकरेजमेंट, सपोर्ट उसको नहीं दिया जा रहा था। वो तो देख रहा था कि भाई मेरे पास क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे पास एक्चुअल कल्टीवेटर फार्मर के पास क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। तो उसको वो इन्वेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो था एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के अंदर, वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रह गया। वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई मेरी सॉइल के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, इस सॉइल की न्यूट्रिशन हेल्थ पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है, वाटर रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल कराने वाला कोई नहीं है, अगर बाढ़ आ जाती है, फ्लड हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, उसमें हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी उसके पास में सपोर्ट नहीं था, लैक ऑफ रिसोर्सेज उसके पास में थे, ठीक है। उसके पास में पैसे तो वैसे थे ही नहीं, तो वो और कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो ये सब रीजंस की वजह से उसका इंटरेस्ट जो था वो फार्मिंग से बिल्कुल चला गया था, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब फार्मर का ही इंटरेस्ट चला जाएगा फार्मिंग से, तो बताइए प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, कंट्री की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डे बाय डे जो है वो डाउन हो रही थी, और हम ग्रो तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था उस पर ध्यान हमारा था ही नहीं, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? सो ऑल दीज वर द रीजंस ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll continue the rest of the topics in next class. Thank you.